Yes, I think it is a good way to start with the lefty right. B Indian captain Huzair was very confident that it is the batting which has blossomed year after year for B Indian. It is the bowling and fielding to an extent where they would like to rework their strategy, and this is a right platform for them to bounce back. So all the KDMC कॉर्पोरेटर सर्व खुश दिसत आहेत. भिवंडी शहर पावला, विजयश्री खेचून आणली आणि उद्या चर्चा असेल महानगरपालिकेमध्ये या सर्व नगरसेवकांची. तर आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य लाभो. आपल्या राजकीय सामाजिक क्षेत्रासाठी लक्ष लक्ष शुभेच्छा. खूप लवकर आपली भेट होईल. चांगले खेळत राहा आणि समाजसेवेचं कार्य करत राहा. जय कल्याण, जय डोंबिवली. Yes, the Balaji Trophy available on YouTube. Type only Balaji Cup 2016. The live coverage from Challenger ground. So back to cricket now. Welcome Kamlakar Patil, the corporator, in our commentary box. Jolly Sport playing and big show of Jolly will be begin from 6 to 13 March. So back to cricket now. Two openers on the ground. Danish sending for a pinch hitting, I think, in initial over. Yes, I think it's a good strategy, and as you rightly said, B Indian, they have a strong batting lineup. Siddiq, wherever B Indian have lost in quarter-final or semi-final, next tournament they have bounced back like anything. So I think there is an undercurrent in B Indian lineup right now, and Jolly, of course, is a very good team, a team with the best team spirit, I would say, all from one village. So I think it should be a good match. All I want to see is a good cricket from both the teams. Obviously and absolutely true, because Jolly is the runner of Anjuman Cup in this season. A lot of tournaments they are qualified for the quarter-final and semi-final. And absolutely, B Indian on number 2 ranking, they won 4 cups. So there is a best wishes for B Indian team from their biggest fan, Mahet Khan. Is going to be Avi open the bowling attack. Is the wicket taker bowler, always time for Jolly Sport Kamatkar. Here he go. Right arm round the wicket. Balls to Danish, left lawn. Right decision, because the ball is away from the off stump. White signal. B Indian open his account with extra and 1 for no wicket. There was a loosener delivery from Avi, and this can happen to you if you have not done any warm-up exercise just before you are about to bowl. That is the reason you will find a lot of bowlers doing a little warm-up with their action before they start. One without loss. Yes. Here we watch Avi. Right arm round the wicket. Was perfect delivery. What a delivery indeed. They threw for a cheeky single, swinging yorker, and last moment dig out with the short back lip. Beautiful ball. That was a comeback delivery for a great bowler and a great competitor of the game, Avi. Immaculate line. I mean, there's nothing that you can do on this delivery except for playing it. And he was lucky enough to survive an appeal of LBW. And now the birthday boy, Zama, is going to face the next delivery. Avi, who is the wicket taker bowler. Here he go. Was beautiful ball. Zama half pop forward and beats him outside the off stump. Oh, this is a perfect delivery for any bowler in the first over. The ball held on to its line, and so was the length, and neat and clean gathering by wicketkeeper behind the stumps. Avi, right arm over the wicket. Goes to Zama, tucked away on the onside. Nice looking stroke, turning in front of his legs. Confident looking drive. Yeah, he's a still wristed player. Zama, especially when you see him playing on the leg side, he's always in control and command. And what B Indian wants is Zama to carry on for a longer time, because he's a quick scorer and also quick runner between the wickets.
3 for no wicket. Slow and steady start from the Indian. This time Mighty in the gap and ball is racing, one bounce, cross the boundary for 4. And then you see a huge uproar from crowd because they have come here in big numbers to cheer up for their favorite team, Be Indian. And Danish obliging them with what a cracking and a rasping pull shot. Yes, cracks it off his back foot. Nice looking pull stroke. Placement is very good. And ball is racing, one bounce, cross the mid-wicket boundary for 4. Abhi goes to Danish. Mighty blow. Should be a 6. Yes, it is. Oh my God, Danish is on song today. Danish has shown his class. And Harish absolutely sending for pinch hitting. That was a loosener. And he put away very easily over mid-wicket for a glorious 6. I think Avi wanted to go for a low full toss, thinking that Danish would drive it towards the offside. But Danish was having some other ideas in his mind. And what a great shot that was. Danish just showing that he can contribute with bat, and he is into the team purely on merit. And he has justified his selection as an opener today. Yes, this is the very good start, attacking start from the Indian. 13 for no wicket. Next match between Pioneer meet Mahindra. Another tough encounter with us. Ravish Khoth, welcome, and Shankar SB. 13 for no wicket. I think late night in 6 over 60 is the magic total. I think it should be a good total to defend, but then you also got to understand one thing, that Jolly again has a decent batting lineup with couple of hard hitters. I'm sure they would like to contain them. Indian certainly learning from their mistakes of last game would try to improve their show, and wishing good luck to both the teams. Yes, no doubt at all. Prem Chand, one of the dangerous opener. This time swept as ball. No elevation behind the stroke. Ball is travelling straight to fielder, and with the stroke batsman through for 1. That marks end of the first over. Be Indian 14 for no wicket. Very good start. Yes, you cannot ask for a better start than this with a makeshift opener in Danish, and Danish has played very attacking cricket in first over, and that has taken pressure off Zama. Zama can now focus on playing a big innings here, because Be Indian certainly wants someone who will stay there for 6 overs, and all the other batsmen will play in and around Zama is the strategy, I guess. Yes, Harish. Winner of this game meet Vicky Sport Kukse tomorrow in semi-final. Oh, that should also be a good match. I mean, whoever wins. Siddiq, one thing is sure and certain, that in Bhiwandi, whenever any team makes it to semi-final, the matches are not going to be easy. It's always going to be a good one. And be it Jolly, be it Be Indian, be it Vicky, I think these teams are there to prove a point in the season. And we wish them good luck once again. So, it's going to be Amol Patel, the experienced campaigner, brought into the attack, because Danish looking for a runs. Here we go, right arm round the wicket. Goes to Danish, swing does ball in the gap, and ball is crossed the boundary for 4. Look at the class of this all-rounder. You tell him to do anything and he will do it. I mean, today is the day. And as I told you, that whenever Be Indian loses any tournament, next tournament they bounce back. And this is what you can see, the outrage by Danish. Yes, reason behind because Be Indian one of the killer streak team. Captain told the opposition side also. This time we wait for umpire signal. Yes, he's out LBW. Danish on his way. And Amol Patil claimed the very important wicket of Danish. This is a very good delivery. I would say Danish wanted to go for his shots, and Amol Patil, realizing that, he attacked his footwork, and Danish had to shuffle to play that ball, because that was a Yorker.
and he got out as leg before wicket. But Danish, what a finish. What an innings he has played today. Yes, right decision from umpire is in front of wicket. Have a look at that. Yes, there is a huge sound from the audience because next batsman is key man Munaf. This is the different tactic used by the Indian captain. Who's that? Yes, I think Munaf again would like to play well here. So, umpire. नरेश ये जो मुनाफ है ना, ये जब भी आते हैं तो दर्शकों के दिलों पे छा जाते हैं और कभी दर्शकों को उदास कर जाते हैं. No, I hope that today is a fighting day for him. He would like to wipe off old memories and start afresh. After all, he is a good player. Let us not forget his innings here on this very ground against Challenge, the way he played a few years ago. Yes, no doubt at all. But Amol Patil claimed the very important wicket. He is the experienced campaigner of Jolly, and Jolly show will be start at 6 to 13 March. And Kamlakar Patil with us. All the best for your show. This time Munaf check his stroke. First ball he used the short back lift and gentle push in covers and with the stroke of the mark. Well, this is what is the right strategy. Rather than going for a kill from very first delivery, you gauge the mood of the ground. You also try to acclimatize yourself with the conditions and also with the type of bowling that is going on. So good start by Munaf. This time swing in the gap. One bounce cross the mid-wicket boundary for 4. So this is where Zama is so deceptive. I mean, he knew that Danish is out. Munaf will now take some time for settling down, and this is time for me to go for the kill. Neat and clean pickup. Slightly over pitch delivery. With the tight swung away. One bounce in the gap. No chance to Yash is there. One bounce. Ball is crossed the mid-wicket boundary for 4. Be Indian into good position now. Janu is there at deep wideish mid-wicket. His score is 23 for the loss of 1 wicket. Amol Patil, right arm over the wicket. Goes to Zama. This time good looking stroke. He picks on the off volley and firmly driven all on the ground to deep extra cover. Yes, and Siddiq, I would say it was firmly driven by Zama and firmly written by Asif Rangrez. Here goes Amol Patil. This time he played unorthodox cricket from Munaf. Tried to reverse sweep, but there is the fielder while in the air. First bounce to Premchand, that short third man. And that marks end of the second over. His score is 25 for the loss of 1 wicket. I think it is a good start. Danish and Zama launched the pad, and now Munaf and Zama will have to capitalize on it. 12.5 runs per over seems to be a good start. So this is the view of the stand where people, these are the people who love Be Indian. They keep asking, where is Be Indian match? When is the Be Indian match? I remember 2 years ago when I came here for Be Indian tournament, everyone was asking for Be Indian cap. Be Indian cap was in demand at that time. 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे आ रहे हैं. फ्लड लाइट की रोशनी की बात करें तो ये टोटल बड़ा नजर आ रहा है. नहीं, वाकई में एक अच्छी शुरुआत दी है दानिश ने. अभी भी 4 ओवर बाकी है. मैं समझ रहा हूँ बी इंडियन की कोशिश रहेगी कि कम से कम 60 तक पहुंचे, और अगर उसमें 10-12 और जमा हो जाते हैं रन्स तो क्या बात है, लेकिन एटलीस्ट 60 चाहिए. अभी ने अपने आप को कंटिन्यू रखा है. इस मरतबा ऑन दी अप खेला था, आगे बढ़कर गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में गई थी 1 रन. मुनाफ आज बैकलिफ्ट को नीचा कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, और जमा अब अटैकिंग मूड में.
26 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ क्रिकेट बालाजी चषक 2016। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बैकलीफ को नीचा किया, धीरे से ड्राइव किया गेंद को डीप मिड ऑन पे प्रेमचंद के पास 1 रन। अच्छी गेंद, सोच की गेंदबाजी। अभी का हमेशा मैंने देखा है कि वो विकेट टेकर गेंदबाज रहे। जब भी अभी को दूसरे गेंदबाजों ने सपोर्ट किया है, जॉली वो मैच जीत गई। अभी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए मुनाफ के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग वहां पर मोहिल की, गजब की फील्डिंग। 3 रन बचाए मोहिल ने अपने टीम के लिए। वाकई में फाइनल के खिलाड़ी के लिए दौड़कर जाना और रोकना, ये 10 में से 1 आध 2 बार संभव होता है चैलेंज पर, क्योंकि थर्ड मैन और फाइनल लेग का आउटफील्ड काफी तेज है और बेशकीमती रनों की बचत। 28 पे पहुंचा है स्कोर। अच्छी गेंद, जब देखा कि जमा घूम चुके हैं, गेंद की लंबाई को कम किया, गेंद जमा के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। बहुत अच्छा गति परिवर्तन अभी दिखाते हुए वहां पर, बिल्कुल इस तरह की विविधता भरी गेंदबाजी अपेक्षित होगी। बड़े मैच के गेंदबाज हैं। इस मरतबा आसमान में उठाया, खिलाड़ी उसके नीचे, जानू और जमा आउट। अब यहां पर सिद्दीक देखिए अवी ने किस तरह जमा के दिमाग को रीड किया। पिछली बॉल डॉट थी, जमा एक बॉल डॉट जाने पर अगली गेंद पर शॉट के लिए उतावले होंगे, उन्हें पता था। इनवाइट किया, ऊंचाई और अंतर दोनों नहीं मिला और दर्शनीय कैच। लेंथ गेंद थी वहां पर, जिसको खेलना चाहते थे जमा, आउट होके जा रहे। दूसरा झटका लगता हुआ भी इंडियन को। स्कोर है इस वक्त 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। थँक्यू। कॉमेंट्री बॉक्स या ठिकाणी सन्माननीय सचिन पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, हार्दिक स्वागत आहे। टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून बरेच रसिक प्रेक्षक आम्हाला मेसेज पाठवतात, सर्वांचे फोन आणि मेसेज घेणे शक्य नाहीये, तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत। पिंपळगडून देवदास शेळके, प्रभाकर शेळके, अमर शेळके आणि शेळके परिवाराच्या वतीने दयानंदजी चोरगे साहेब आणि या चषकाला शुभेच्छा दिल्या, धन्यवाद। सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत। मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्न पे गेंद को उठाया था, सफाई से नहीं खेला था। 1 रन से स्कोर, 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए जीतू मानेरकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बालाजी कप को सफल बनाने के लिए दिन रात जीतू मानेरकर ने एक कर दिए थे। हरेश 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। वापसी की अविनाश ने, अभी ने इसलिए अपने हाथ में गेंदबाजी ली थी, उनको पता था कि तीसरे ओवर में जमा गेंदों को बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, उनका विकेट हासिल किया। यही अभी की खासियत है, इसलिए उनको मैं जॉली का विकेट टेकर गेंदबाज कहता हूँ। थैंक यू। 3 ओवर में क्या होता है या ये सुनते हैं हरीश पंड्या से। या ठिकाणी आपण एक स्वागत करतो। या ठिकाणी उपस्थित काटे गावचे सन्माननीय ग्रामपंचायत सदस्य संतोष भोईर साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। मी चोरगे साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे। सन्माननीय सदस्य ग्रामपंचायत काटेई संतोषजी भोईर साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे, धन्यवाद। थँक्यू, थँक्यू सिद्दीक बाबे सर। धन्यवाद मनोहर तारे। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अरविंद, और अरविंद का सामना करेंगे बैट्समैन मुनाफ। इस वक्त मुनाफ और मतीन, ये 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, सख्त बल्लेबाज कहे जाएंगे जहां तक स्ट्रोक प्ले का सवाल है, और सही मौका भी है। अविनाश ने एक अच्छा ओवर किया, कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर था ये, और अब 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। नए ओवर की शुरुआत अरविंद द्वारा। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से पधारे हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पहली गेंद तेज जाती हुई, ऑफर मिडल की लाइन को पकड़ा था, और मुनाफ हॉरिजॉन्टल बैट से खेलना चाह रहे थे, साफ बीट होते हुए। ये देखिए अंदर की जानिब गेंद कटी थी, बहुत खूबसूरत इन कटर।
अरविंद बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा था बाली ट्रॉफी में अरविंद का 2 ओवर 5 रन और 5 विकेट। तो 29 पर 2 बी इंडियन इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया था, वहां पर मुनाफ थोड़ा सीखते हुए उन्हें पता है कि आज उनके शॉट टाइम नहीं हो रहे, उन्होंने सीधा मतीन के पास स्ट्राइक दे दी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं बालाजी चषक 2016, आप लोगों के घरों तक इसको लेकर आ रहे श्री स्वामी समर्थ मूवीज। हमारे जो दर्शक इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहे हैं www.tenniscricket.in पर, आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। मतीन स्ट्राइक पर, ड्राइव किया था, बराबर से बल्ले के पट्टे पर ले नहीं पाए थे, हालांकि बॉलर की रफ्तार का उपयोग और वाइडिश मिडॉन पर बॉल को रोका गया था। स्कोर 31। अब तक जो विकेट गिरे हैं उसमें दानिश आउट हुए थे कुल मिलाकर 16 पर, और जमा आउट हुए थे 7 पर, 1 रन अतिरिक्त है। इस बार लंबा हिट लगाना चाहते थे मतीन और बॉल दायरे के बाहर और वाइड बॉल अंपायर द्वारा। अंपायर है शशि साटम। दोस्तों, अंपायर शशि साटम के बारे में मैं बताता चलूं, मुंबई और महाराष्ट्र की सबसे सक्सेसफुल टेनिस बॉल टीम राहुल 11 के वो ओपनिंग बैट्समैन थे। चंद्रकांत शिंदे के साथ में बहुत जबरदस्त बैटिंग कोई जमाने में शशि साटम और चंद्रा की। सो वेलकम टू शशि इन भिवंडी। क्रीज के कोने से इस बार और उठा दिया, क्लास दिखा दिया अपना, जलवा, मुनाफ का जलवा। जैसे ही गेंद पट्टे में आई, लाजवाब स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक। यही मुनाफ की खासियत है। हालांकि वो ड्रॉप सीन में आते हैं मैच के स्लॉग ओवर में, आज ऊपर भेजा है उनको, लेकिन दुनिया क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, बहुत कम ऐसे बैट्समैन रहते हैं जो इस तरह का क्रिकेट खेलते हैं। ना उनको गेंदबाज ज्यादा देर खामोश रख सकता है, ना कप्तान। नहीं, वाकई में। और सिद्दीक बाबे, जहां तक खामोशी की बात है, आपको भी तो खामोश करना कोई आसान काम है? चौबीस साल से आपकी सेवा में। तो यहां पर वाइड बॉल। सिद्दीक, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि लगातार वाइड गेंदे देखने को मिल रही है? नहीं, अभी ने जो गेंदबाजी की थी उस प्लेटफॉर्म पे गेंदबाजी नहीं हो रही। अभी हमेशा से इस सीजन में जॉली के लिए बहुत अच्छे गेंदबाज रहे। अरविंद ने बाली ट्रॉफी में गजब की गेंदबाजी की थी, बेस्ट बॉलिंग फिगर भी था उनका, 2 ओवर 5 रन और 5 विकेट। इस बार लंबा हिट, लगभग 2 से 2.5 कदम आगे आ गए थे मुनाफ। एक तो उनका कद भी ऊंचा है, लेकिन बॉल को बराबर से कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर जब देखा कि ये देखिए कदमों का इस्तेमाल कर रहे, निकल के मार रहे, और गेंद की लंबाई बहुत अच्छी थी, आगे पिच किया था वहां पे। बी इंडियन के पास स्कोर अच्छा है 4 ओवर के लिए, लेकिन अगले 2 ओवर निर्णायक होंगे। पंच करना होगा आखिरी 2 ओवर्स में। फुल टॉस बॉल, और इस बार एक बार फिर से अच्छा क्षेत्ररक्षण मोहिल द्वारा। 3 रनों की बचत, स्कोर 40 4 ओवर की समाप्ति पर। थँक यू कॉमेंट्री बॉक्स। मित्रांनो, माजी केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांचे सुपुत्र सन्माननीय संतोषजी दानवे साहेबांचं उद्या आपल्या कार्यक्रमासाठी म्हणजे बक्षीस वितरण समारंभासाठी आगमन होत आहे। नक्कीच सन्माननीय दानवे साहेबांचं भिवंडी नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। या ठिकाणी समाज कल्याणाचे धर्मसेवक डॉक्टर सोन्या काशीनाथ पाटील साहेब, तसेच जयवंत पाटील साहेब व नारायण मामा पाटील यांनी दयानंद चोरगे साहेबांना आणि सन्माननीय मोतीरामजी चोरगे साहेबांना शुभेच्छा दिल्यात। तसेच ठाणे जिल्हा किसान आघाडीचे सन्माननीय अध्यक्ष यशवंत सोले साहेबांनी या संपूर्ण चषकाला एक अतिशय देखणं चषक पाहतोय अशा प्रतिक्रिया दिल्या। धन्यवाद। टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून जे रसिक प्रेक्षक या संपूर्ण सामन्याचा आनंद लुटतात व सन्माननीय साहेबांना शुभेच्छा देतात, त्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि आभार। धन्यवाद। ओ टू कॉमेडी बॉक्स सन्माननीय
हरेश पांडे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 4 ओवर में 40 रन बने हैं और मुनाफ और मतीन दोनों नॉट आउट, जो एक अच्छी बात है बी इंडियन के लिए। 12 गेंदों में कम से कम 20 ये तो बनाने ही होंगे, 20 से ज़्यादा जितने भी बनते हैं बी इंडियन के लिए अच्छी बात रहेगी। इस बीच गेंदबाजी में एक परिवर्तन, नया ओवर लेकर आ रहे हैं अमोल ने अपने पहले ओवर में 11 रन दिए थे और एक सफलता हासिल की थी। 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। जब दूसरा विकेट गिरा आसिफ तब स्कोर था 28, यानी कि 12 रनों की भागीदारी। नेवर की पहली गेंद, सफल ओवर खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल समझ नहीं पाए उस गेंद को और आउट। अंपायर का सही निर्णय। मुनाफ सफल होकर खेलना चाहते थे, बॉल के ऊपर से नजरें हट गई थी और यह गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल उनकी नजरें गेंद के ऊपर नहीं थी। बड़ी विकेट। बैट्समैन को पता चाहिए वो कहाँ खड़े, और अच्छा बैट्समैन होता है जिसको पता रहता है कि उसका ऑफ स्टंप कहाँ है। अच्छा गेंदबाज वो है जिसको पता रहता है कि ऑफ स्टंप कहाँ है। ये देखिए उन्होंने छोड़ दिया था और यस टो पे लगी थी और यहां पर जाने का इशारा। तो आउट होने से पहले मुनाफ ने 13 रन बनाए और बी इंडियन की ओर से अब 3 डाउन बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं बाबा। 40 महिंद्रा के कैप्टन पपिया खारिक, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आना है। महिंद्रा के कैप्टन पपिया खारिक। 40/3 बहुत ही कड़क शुरुआत यहां पर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर द्वारा। 3 बेशकीमती विकेट। दोनों ओपनर्स दानिश जमा और मुनाफ 1 डाउन बैट्समैन। अगली गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर आती हुई, बायां पैर आगे लाए थे और आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीप कर दिया था। 41 पर पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। मिड विकेट की तरफ खेला था जहां मोती ने गेंद को रोका था। एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड की ओर से। मतीन ने इस बार आगे अगर खेलना चाहता, वहां पर बहुत ही अच्छी कोशिश रही थी मोती की। मतीन ने अपने शॉट को पूरा फिनिश नहीं किया था और वहां पर मोती आगे आकर अपने आप को झोंकते हुए। ये देखिए भिवंडी के रिकी पॉइंटिंग ने बिल्कुल रिकी पॉइंटिंग की तरह एथलेटिक प्रयास किया था वहां पर। अगर ये कैच हो जाता तो जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के लिए काम आसान हो जाता, और अब जबकि ये कोशिश बहुत अच्छी थी, अब मतीन यहां से कितने रन आगे बनाते हैं वो सारे निर्णायक साबित होंगे। स्ट्राइक पर बाबा 42/3 5वां ओवर। बाबा ने इस बार पुल कर दिया है, बॉल जा रही है वाइडिश मिड विकेट की तरफ। 1 रन। दोनों बल्लेबाज 1-1 रन से काम चला रहे हैं क्योंकि अभी भी बड़े शॉट्स खेलने के लिए जो आजादी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। 5वां ओवर जो चल रहा है उसमें काफी अब कंट्रोल किया है और 43 रन बी इंडियन 3 विकेटों के नुकसान पे। इस बार मतीन आउट, बड़ा विकेट। शॉट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया था मतीन ने। पिछली बार भी देखा हाफ कॉक शॉट था, इस बार भी फिनिश नहीं किया था। आमतौर पर उस जगह पर जैसा सिद्दीक आपने शाम को बताया था मतीन शुड क्लियर दैट, लेकिन अमोल ने क्रीज के कोने से गेंद को लो लाइंग फुल टॉस और एक सॉफ्ट डिसमिसल कहा जाएगा, आसान कैच। बिल्कुल दादा खोत शमशुद्दीन ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है बी इंडियन को। लेकिन एक बात जरूर है
कि जिस क्लास के फॉर्म में मतीन थे उस क्लास का स्ट्रोक उन्होंने नहीं खेला। एक प्रेशर लिए बगैर खेलना अलग बात होती है। मैं समझ रहा हूं आज बी इंडियन को स्कोर चाहिए, दे नीड रन्स, क्योंकि स्कोर की बदौलत ही वो इस मैच में टिक पाएंगे। 43 पर 4। कहां एक समय था जब 40 पर 2 थे, 3 थे 40 पर, 43 पर 4, 28 पर 2 एक अच्छा दृश्य था, लेकिन अब 43 पर 4 जो है, अब ये स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत है। ओवर की पहली गेंद पर विकेट, फिर 1-1-1 और फिर वापस विकेट, दोहरा झटका इस ओवर में। बिल्कुल, जिस तरह से ओपिनियन दिया था कप्तान आवी ने कि बी इंडियन वो टीम है जो आसानी से मैच छोड़ती नहीं, किलर स्टिक टीम, तो उनको पता है कि बी इंडियन को कहां तक रिस्ट्रिकेट करना है। ये देखिए मानवी समुद्र हम देख रहे हैं, वीआईपी डाइस, और उसके नीचे का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से भर चुका है। साउथ स्टैंड पूरी तरह से भर चुका है। आशा पाटिल गैलरी इस वक्त पूरी तरह भर चुकी है और नॉर्थ स्टैंड भी अब भरने की तैयारी में। बिल्कुल मेगा इवेंट का नजारा आप देख रहे हैं। नया बैट्समैन है हसीब, और आउट होने से पहले मतीन ने 2 रन बनाए। दानिश ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया था, ऐसा लग रहा था ये स्कोर 60 के आगे जाएगा, और दानिश आउट। उसके बाद जमा ने कुछ समय के लिए वहां पर मैच को होल्ड ऑन किया, फिर जमा आउट हुए। उसके बाद मुनाफ ने अब मतीफ के साथ मिलकर थोड़ी सी शुरुआत की ही थी कि वहां पर दोनों अब आउट होकर वापस लौटे। 5वां ओवर अमोल पाटिल द्वारा। पाटिल के इस ओवर में केवल 3 रन गए और 2 विकेट गिरी है। इस बार हसीब ने घुमा दिया बॉल मैदान के बाहर 6 रन के लिए। जोर का झटका, धीरे से लगने वाला शॉट हसीब का, टच एंड गो वाली बात थी। बहुत खूबसूरत टाइमिंग थी, एफर्टलेस स्ट्रोक जिसे कहते हैं। ये देखिए एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। फ्लिक कर दिया पैरों के सामने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। तो ये ओवर काफी घटनाओं भरा रहा। पहले विकेट, फिर 3 सिंगल, फिर विकेट और फिर 6 रन। 5 ओवर 49 रन 4 विकेट। आखिरी 6 गेंदों में बी इंडियन को कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15-20 जितने मिले काम में आएंगे, बट एटलीस्ट दे शुड स्कोर 15 to finish at around 64, which should be a good score. 6 गेंदे हैं और हसीब और बाबा, अब ये दोनों किस तरह से आखिरी 6 गेंदों का सामना करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा गेंदों का। आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी अब अरविंद पर। मोहिल की तरफ बॉल को थमाया जा रहा है, काफी सोच। आखिरी ओवर करना उतना आसान काम नहीं होता, लेकिन मोहिल ने जिम्मेदारी ली है। इसके पहले क्षेत्ररक्षण में 2 चौके बचाए अपनी टीम के लिए। एक युवा खिलाड़ी है और जिम्मेदारी को लिया है, जो सबसे बड़ी बात है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में भी कई बार ऐसा होता है जब क्रिस गेल या हर्षल गिब्स हो या अफरीदी हो, तेंदुलकर जैसे बैट्समैन हो, तो कभी कभी गेंदबाज हाथ में गेंद लेने से कतराते हैं कि भाई मुझे मत दीजिए, कन्नी काट लेते हैं। ऐसा प्रूव भी हुआ है 2-3 बार, लेकिन जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल, इस वक्त शरद भोई ने ऑल द बेस्ट कहा है जॉली को, और बाबा ने निराश नहीं किया। बेसबॉल हिट, 6 रन, झकास। बहुत खूबसूरत शॉट, ताकतवर स्ट्रोक बाबा का। आज तो यहाँ बहुत ऊंचे स्ट्रोक्स लग रहे हैं। दीपेश माली ने तो तमाम कीर्तिमान तोड़ डाले चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के। अभी तक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर 1984 से लेकर तो आज तक लगने वाला सबसे लंबा 6 लगाया था उन्होंने। तो ये 6 रन यहाँ पर
खुशी लेकर आते हुए बी इंडियन के लिए। ऐसे भी आज खुशी का दिन है, पहला दिन, पहली तारीख है, जरूर कुछ मीठा खाना चाहिए क्योंकि आज पहली तारीख है। अगर आपने डिनर कर लिया हो तो कुछ खा लीजिए। बाबा यहां पर एक और पावर पैक शॉट और बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। पहले 6 बाद में 4, पहले मिड विकेट और अब लॉन्ग ऑन। बाबा वाकई में आज अपना नहीं, बाबा जो हैं वो मिडल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और जब भी जरूरत पड़ी है बी इंडियन को उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। बहुत ही अच्छा। अब बी इंडियन कंप्लीटली इस मैच में आ चुकी है ऐसा मैं कह सकता हूं क्योंकि 4 गेंदें बची हैं और जो हिसाब से बैटिंग हो रही है अगले 4 गेंदों में अगर 10 रन भी बन जाते हैं तो दे शुड फिनिश समवेयर अराउंड 70 एंड दैट शुड बी अ गुड स्कोर। बाबा के खेलने का अंदाज देखिए, वो बैकलीफ ऊंचा यूज करते हैं, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक सिलेक्शन। देखिए एक नए गेंदबाज के हाथ में बॉल थमाई है मोहिल। तो अगले मैच का टॉस नगर सेवक कमलाकर पाटिल जी के शुभ हाथों से होगा। तो यहां पर 5 ओवर और 2 गेंदों का खेल हुआ है। बाबा ने 2 गेंदों में 10 रन खरीद लिए हैं वहां पर। अब देखें और 4 गेंदें क्या लेकर आती है बी इंडियन के लिए। इस बार उठा दिया एक और छक्का। बाबा की धूम मची है आज। Beautiful shot, beautiful shot. Have a look at in replay. Magnificent hook shot. हाफ ट्रैकर बॉल थी और हाफ ट्रैकर बॉल आप बाबा को कैसे कर सकते हैं जबकि वो अगली 2 गेंदों पर 6 और 4 मार चुके हैं। This is a complete hook stroke. He moving inside the line, then angling his body, hooks the ball beautifully over long leg fence for 6. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंच गया 65 पर। जैसे ही कुछ मीठा खाने की बात की और देखिए वहां पर डेफिनेटली बी इंडियन टीम मैनेजमेंट, टीम ओनर्स हबीब भाई, पप्पू भाई काफी आनंदित होकर इसका मजा ले रहे हैं और मैं समझ रहा हूं रात को आइसक्रीम पार्टी हो सकती है जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। 65 पर 4 बाबा ने मतलब दिखा दिया कि जब टीम के रेगुलर बल्लेबाज रन नहीं बनाते तो वक्त आता है कि मिडिल ऑर्डर रन बनाए। और यही बात है कि क्रिकेट 11 खिलाड़ी खेलते हैं, हर वक्त आप 2 या 3 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकते और बाबा ने अपने चयन को सार्थक किया टीम के अंदर। और देखिए अब खिलाड़ियों के चेहरे पर क्या मुस्कान देखने को मिल रही है। पहले 3 गेंदों में अब तक का 16 रन। बाबा की धूम मची है। पैंसठ रन और बी इंडियन अब सेफ स्कोर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। इस बार वाइड बॉल 66। लगातार 3 बड़े झटके खाने के बाद अब मोहिल ने ऑफ स्टंप की तरफ रुख किया था लेकिन क्रीज के कोने से गेंद की थी और बहुत ज्यादा बाहर। सही निर्णय अंपायर का। इस बार ग्राउंड शॉट था, शॉट मिड विकेट पर 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 और अब स्ट्राइक पर आए हसीब। अभी भी जो गेंदें बची है उसमें बी इंडियन कोई भी गेंद को बिना रन के खेलना नहीं चाहेगी। कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा फिर 4 या 6 जो भी आएंगे उसका स्वागत करना चाहेंगे। जॉली को चाहिए कि इस वक्त रन को कंटेन करे। इस बार हसीब ने शॉट खेला था, टाइमिंग सही हो नहीं पाया था। हालांकि 1 रन चाहते तो रन के लिए जा सकते थे क्योंकि बॉलिंग एंड पर बैकअप करने के लिए कोई नहीं था। दे कुड हैव गॉन फॉर 1 रन। स्कोर 68 पर पहुंचता हुआ और अब आखिरी गेंद का
मुकाबला यहाँ पर मोहिल और बाबा के बीच में, क्या बाबा एक आखिरी शॉट लगा पाएंगे? इस बार 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 पर। तो मैच जीतने के लिए 70 रनों का टारगेट दिया गया है। थँक यू. पुन्हा एकदा बालाजी चषक 2016 मध्ये आलेल्या तमाम सर्व सन्मान्य पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. या ठिकाणी भिवंडी महानगरपालिकेचे शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती, विद्यमान सदस्य सुंदर सेठ नाईक साहेबांनी, दयानंदजी चोरगे साहेब, मोतीरामजी चोरगे साहेब आणि या संपूर्ण आयोजन आणि नियोजनाला लाख लाख शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद सन्माननीय सुंदर नाईक साहेब. तसेच विवेक श्याम म्हात्रे यांनी सुद्धा या संपूर्ण चषकाला व सन्माननीय दयानंदजी चोरगे व मोतीरामजी चोरगे साहेब यांना व बालाजी चषकाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून जे रसिक प्रेक्षक या संपूर्ण सामन्यांचा घर बसल्या आनंद लुटल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. पुढील सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी मी या ठिकाणी विनंती करतोय, पुढील सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी संतोषजी भोईर, सचिनदादा पाटील आणि आत्माराम वाकडे यांना तिघांना विनंती करतोय. तर मनोहर, आता मित्रांनो पुढच्या सामन्यासाठी आपण इथे एकत्रित आलेले आहोत. माझ्या डाव्या बाजूला नगरसेवक कमलाकर पाटील साहेब आहेत. माझ्या उजव्या बाजूला स्पर्धेचे आयोजक आणि क्रिकेटचे खूप मोठे चाहक दयानंद चोरगे आहेत. आणि तसेच दोन्ही संघनायक पप्या खारीक म्हणजे देवेंद्र हा महेंद्र स्पोर्ट्सचा संघनायक आहे आणि तसेच अशीर हे पायनियरचे संघनायक आहेत. तर दोन्ही कर्णधारांच्या माहितीसाठी नाणेफेकचा जो शिक्का आहे त्याच्या एका बाजूला दयानंद चोरगे यांचं चित्र आहे, दुसऱ्या बाजूला आपले खासदार कपिल पाटील साहेब यांचं चित्र आहे. तर कॉलिंग करत असताना तुम्हाला कपिल किंवा दयानंद हे सांगावं लागेल. तर आपल्यापैकी कोण कॉलिंग करणार आहे? देवेंद्र कॉलिंग करणार आहे. दयानंद चोरगे त्यांनी सांगितलंय. बघूया. अँड इट इज कपिल पाटील. अशीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अशीर. सबसे पहले तो बाली ट्रॉफी की उज्जवल सफलता के लिए लाखों शुभकामनाएं. क्या सुपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया. इस क्वार्टर फाइनल में टॉस जीतकर क्या निर्णय लिया है? फील्डिंग लेना चाहूंगा. और आप महेंद्र जैसी एक मजबूत टीम के सामने खेलने जा रहे हैं, तो 6 ओवर के मुकाबले को ध्यान में रखते हुए कोई पर्टिकुलर स्कोर आपके दिमाग में है? 50 प्लस के अंदर रुकना चाहूंगा. और इस वक्त जो बाली ट्रॉफी में आपने परफॉर्म किया और उसके बाद ये मैच के बीच में जो गैप मिला था, उसमें क्या पायनियर ने कुछ सोच विचार, मीटिंग, कुछ इम्प्रोवाइज के लिए कुछ किया? हाँ सर, मीटिंग की है कि कैसा खेलना है, कैसा प्लान सब की है. इंशाल्लाह ताला गेम में दिखाएंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया अशीर, थँक्यू सो मच. देवेंद्र, जर नाणेफेक तुम्ही जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? बॅटिंग घेतली असती आणि तुम्हाला ती बॅटिंग भेटलेली आहे. महेंद्रची ताकद नेहमी त्याची फलंदाजी राहिलेली आहे. तुमच्याकडे बिलाल आहे, गेसुद्दीन आहे, तुम्ही स्वतः एक चांगले हार्ड हिटिंग बॅट्समॅन आहात. म्हणजे आतापर्यंत जे या हंगामामध्ये क्रिकेट चाललंय, तुम्हाला काय वाटतंय कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या महेंद्रसाठी चांगले झालेत आणि कुठल्या काय गोष्टी एखादी असेल जी चालत नाही, असं काय वाटतंय का तुम्हाला? बॉलिंग तर चालतच नाही. तर आता जेव्हा प्रथम फलंदाजी भेटलेली आहे तर काय स्कोर डोळ्यासमोर ठेवलाय? 50च्या वरती जाण्याचा प्रयत्न करू. तर तुम्हाला लक्ष शुभेच्छा देवेंद्र. तर मित्रांनो, आत्ताच पुढच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे. बालाजी चषक 2016 मध्ये पायनियरचे संघनायक अशीरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी घेतली आणि प्रथम आमंत्रित केलेलं आहे ते महेंद्र स्पोर्ट्स या संघाला फलंदाजी करण्यासाठी. हा सामना थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. तोपर्यंत चला परत एकदा वळूया समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद. थैंक यू हरेश. काउपन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप कोरसई ने इस वक्त बालाजी कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है. हा, तसेच या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे एक धुरंधर नेतृत्व व माजी नगरसेवक टेमगर गावचे सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम चौधरी साहेबांनी सन्माननीय दयानंद चोरगे साहेब तसेच मोतीरामजी चोरगे साहेब आणि या संपूर्ण बालाजी चषकाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. घर बसले या संपूर्ण सामन्याचा आनंद लुटतायत. धन्यवाद तुकारामजी चौधरी साहेब, आपला लाख लाख आभार.
Siddiq, Ashir was looking very relaxed when he gave this interview today. I think all the captains have learned the art of being very optimistic here. क्या लग रहा है आपको पाइनियर महेंद्र, how the match should shape up? बिल्कुल, एक तरफ गेंदबाजी बहुत मजबूत है पॉइनियर की, तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी बहुत मजबूत है महेंद्रा की। हालांकि एक से दो बहुत अच्छे इनिंग खेले यहाँ पर बिलाल शेख ने, लेकिन बिलाल शेख का जो रंग है, जो पिछले साल या 2 साल पहले रहा था, वो रंग हमको देखने नहीं मिला। लेकिन क्लास परमानेंट है और बड़े खिलाड़ी कभी भी वापसी कर सकते हैं। और जहाँ तक पॉइनियर का ताल्लुक है, बिलाल शेख नहीं खेल रहे हैं जिस तरह हमें सूचना मिली है। और जहाँ तक पॉइनियर का ताल्लुक है, आपने देखा जिलानी विकेट टेकर गेंदबाज हैं। जिस टीम में एक ऐसा गेंदबाज हो जो आपको हार्डली 2 से 3 झटके लगा के दे, तो फिर अपोजिशन की बारी को समझने में समय लगता है। नहीं, मेरे ख्याल से एक अच्छा मुकाबला है। पाइनियर और महेंद्र दोनों अपने विजेता पद की तलाश में हैं और मेरे ख्याल से इससे बड़ा मौका क्या होगा कि जब चैलेंज के इस ऐतिहासिक मैदान पर उनको खेलने का मौका मिल रहा है क्वार्टर फाइनल में। तो आइए चलते हैं दूसरी पारी में। सिद्दीक बाबे। Thank you. Aresh Akhtar opened the bowling attack. This is the interesting change by the Indian captain. This time Moti uses feet, then check his stroke and gentle push in covers. And with the stroke, Moti off the mark. Jolly 1 for no wicket. Chasing a huge total, I think. The asking run rate is touched to 12. Yes, I think they have started well and they should look forward to a good stroke selection if they are to win this match. I think Moti would be a key player. Akhtar to the, oh, beautiful ball, beam outside of a stump. Express delivery from Akhtar. And Premchand is the very good striker of the tennis, and as far as leather ball, is an informed player in a style of Vivian Richard. Lot of depend on Premchand. Slightly change in field now. Munaf at backward point and man at third man boundary. Here goes Akhtar, left arm round the wicket. Goes to Premchand, who committed on the front foot and loose bottom and push, and they go for 1. No, I think both the batsmen know the strategy of chasing 70 runs. They would not like to start, their journey in 4th and 5th gear. They would slowly like to change their gears as the match progresses. 2 for no wicket. Akhtar goes to Moti, firmly driven past the bowler. Well cut off by Danish in deep and batsman gets 1. Oh, what a throw from Danish. That was right above the bails. Akhtar would appreciate that. I mean, what a quick throw from Danish. Akhtar to Premchand, swing in the air. Oh, magnificent. Taken by the fielder in deep. Hasib is there. This is catch of the day. Let me tell you, this is catch of the day. Premchand wanted to finish the shot, and I'm really surprised Premchand could not finish the shot because that was there in the slot. And look at Hasib, he gave his 100%. And a priceless wicket, I think, because Premchand is the informed batsman, catches winning matches. 100 out of 100 for Hasib. He has shown his class with batting. He scored 1-6 and now he has taken a very valuable catch. This catch will lift and boost the morale of B Indian team. This is what I was talking about, that whenever B Indian loses any tournament, they bounce back with a bang. And probably today is the day when they would like to prove themselves. However, it is still too early in this match. But Yes, then they have set the tone. Lot of game remaining and cricket call a glorious uncertainty game. Yes, current position, no doubt at all, B Indian claim the very important wicket, but large batting to follow. Arvind is there, Rakesh is there, he's the best slog sweeper. Lot of batting to follow, like Prem is there, Janu is there.
and Yash with a golden boundary. New man in Rakesh. Miraj Patel from Mapoli. Lot of congratulations to Dayanand Churge and Balaji Cup. 3 for the loss of 1 wicket. Akhtar, left arm round wicket. This time left lawn and ball is racing 5 wides. Siddiq, there's one saying, देने वाला जब भी देता है पूरा छप्पर फाड़ के देता है. I mean, do you think this was required? Yes, I think Akhtar tried to generate the pace from the pitch wide as he ball wide. But this is the 5 mega bonus run for opposition side. This has brought them back into the match. This time slog sweep. Oh, what a taken. What a taken by Matin. Jumping catch. Catches winning matches. This is the extraordinary fielding from B Indian. Oh, this is what is called as best game. You hit one for 4 or 6 and then you take another one by taking a catch. That was plucked into the air and it was a blinder. 2 back-to-back good catches. Look at that. Look at that. Like athletic. Inches inside the boundary line. Super catch. I think Mateen also contributing with catch. He knew that today he missed out on batting, but then by taking that catch, again B Indian back into the match. Harish, do you think there is a catch and Alam given with 6 bonus run to Vicky Sport Cook say, and here is a 6 and Mateen convert in catch. Yes. So this is what is the difference. Whoever is there on the boundary line, he should be nimble-feeted, and that is what Mateen did. I mean, very delicate, very close, but then ultimately fortune favors the brave, and Mateen was looking brave there and taking a catch. He made it look so simple, although it was not. And hats off to B Indian. एक ओवर की समाप्ति 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त स्कोर है जॉली का उजैर. पहली गेंद बहुत खूबसूरत ड्राइव, गेंद को खेला वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, दूर का फासला तय किया. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. 1 रन शॉट दिया है स्ट्राइकर एंड के अंपायर ने, यानी कि नॉन स्ट्राइकर मोती ने उस रन को पूरा नहीं किया था. क्रीज में बल्ले को रखना या तो पैर को रखना, ये बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल, वो भी ऑन दी लाइन नहीं, लाइन के अंदर. जी हाँ, और इसलिए ऐसे टाइम पे आपको यू मुंबा की कबड्डी टीम को देखना चाहिए, ले पंगा. गेंदबाजी कर रहे हैं उजैर, सामना कर रहे हैं प्रेम. क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, तीसरा. इस मरतबा बहुत खूबसूरत अंदाज से खेला था, लेकिन रन पूरा किया. वहां पे अच्छी फील्डिंग, निशाना चूके जरूर मुनाफ. 1 रन से स्कोर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. उजैर, आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की जानिब से मुड़ते हुए. बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को. फॉरवर्ड स्ट्रोक पे पूरी तरह से चूके थे बैट्समैन. बहुत ही लाजवाब टप्पा था उस गेंद का. एक पल के लिए ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो हाफ ट्रैकर गेंद है, लेकिन टप्पा खाकर इतनी तेज चली गई कि उसको खेल पाना लगभग असंभव सा. लेंथ गेंद थी वहां पर. इस मरतबा बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश. डॉट गेंद, जब आप डॉट गेंद खेलते हैं तो आप पर दबाव आ जाता है, और जब दबाव आता है तो अक्सर अवकात देखते हैं कि बैट्समैन या तो गेंद को बाहर मारता है या तो खुद बाहर जाता है. मोती, हालांकि मोती ने बी इंडियन के सामने हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की है. उजैर, मोती के लिए कदमों का इस्तेमाल, गेंद को छोटा रख दिया, ये देखते हुए कि निकल के मारने की कोशिश कर रहे हैं मोती.
गजब की गेंदबाजी। और उजैर का जो आर्म एक्शन है वो आउट स्विंग बहुत इफेक्टिव करती है। नहीं, यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के दबाव में जियो, जियो तो हमेशा अपने स्वभाव में जियो। मोती विल हैव टू प्ले हिज नेचुरल गेम। मोती अब तक कितने डॉट गेंदे खेल चुके हैं? 3। उजैर मोती के लिए इस मरतबा सफाई से नहीं खेला, खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद चली गई कवच में। 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। बचे हुए 4 ओवर में जीतने के लिए अब 59 रन चाहिए और आस्किंग रन रेट बहुत ही हेल्दी हो चुका है। अगर पहले 2 ओवर को हम कंपेयर करें सिद्दीक भाई, तो पहले 2 ओवर में बी इंडियन ने 25 रन बनाए थे 12.5 के औसत से। ये वो समय था जब दानिश काफी आक्रामक क्रिकेट पर आमादा हो गए थे। और यहाँ पर आप देखिए तो 2 विकेट गिर चुके हैं और 11 रन बने हैं, यानी कि अब 24 गेंदों में मैच जीतने के लिए 59 रन चाहिए। मतलब हर गेंद पर 2 से भी ज्यादा रन बनाने, लगभग 2.5 रन। थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. तर नक्कीच टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून भरपूर असे शुभेच्छा सन्माननीय दयानंदजी चोरगे साहेब, मोतीरामजी चोरगे साहेब यांच्यासाठी येत आहेत. भिवंडीचे पटेल कॅडर्सचे अविनाशजी पटेल यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तसेच भादवडवरून संतोष तरे, मोहन नाईक, राम म्हात्रे, दिनेश तरे, दीपक होरे आणि द्वारकानाथ तरे यांनी संपूर्ण चषकाला व सन्माननीय दयानंदजी चोरगे साहेब, मोतीरामजी चोरगे साहेब यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद. ये देखिए अख्तर को कंटिन्यू रखा गया है। फर्क इतना है कि यहाँ पर अख्तर बहुत लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। बाली ट्रॉफी में भी उनको कंटिन्यू इसीलिए रखा था कि कुमार को आउट करे, लेकिन कुमार ने तो बता दिया था 100 सुनार की, 1 लवार की और 1 कुमार की। अख्तर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। मोती के लिए बहुत खूबसूरत गेंद। इस तरह की गेंद पर हरेश आप सिर्फ सिंगल ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ने मेरे ख्याल से पहले हुजैर और अब अख्तर, इनको एक जीत का फॉर्मूला मिल चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं कि मोती को उन्होंने बांध कर रखा है 11 पर 2। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं अख्तर की। मोती आज अपने रंग में नजर नहीं आ रहे। क्लास तो उनका बहुत बड़ा है और जरूरत भी उनकी टीम को उनकी बल्लेबाजी की। अख्तर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फिर से अच्छी गेंद। लगातार गेंदों में काफी परिवर्तन कर रहे हैं। इस गेंद को उन्होंने गुडलेन पे रखा था और पहली गेंद को आगे पिच किया था। और सबसे बड़ी बात है इन एंड अराउंड ऑफ एंड मिडल, यानी कि जो लाइन और लेंथ है इसको पकड़कर आज गेंदबाजी हो रही है। आज फुल टॉस बॉल नहीं गिर रही है, शॉर्ट पिच गेंदें नहीं गिर रही है, गेंदों को पिचअप कराया जा रहा है। मतलब एक बहुत गहरी सोच के साथ भी इंडियन वापस लौटी है। क्या छूटा था पिछली गेंद पर, इस मरतबा चॉप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। 1 रन पूरा होता हुआ 12 पे पहुंचा है स्कोर। दूसरा ओवर चल रहा है, तीसरा ओवर चल रहा है। हरीश, इस मैच की विजेता टीम को कल विकी स्पोर्ट कुक्से से टकराना है। अख्तर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से गेंद को मोड़ दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। ये चौका जरूरी प्रेशर हटाएगा। बिल्कुल इस तरह के 2 से 3 शॉट्स चाहिए अब बहुत जल्दी मैच में वापसी करने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर को। बहुत खूबसूरत शॉट और गेंदबाज का जो पेस था उसको अच्छा यूटिलाइज किया है। कनेक्ट अच्छा रहा था और विकेट कीपर के लिए वहां पर कोई मौका नहीं था उसे रोकने का। तो यहां पर अच्छी स्थिति में आने का प्रयास कर रही है जॉली। अख्तर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। अच्छी वापसी, बेहतर लंबाई की गेंद की थी। बेहतरीन गेंदबाजी हम कहेंगे अख्तर की। और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे आपको तो पता है कि अख्तर ने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की। अख्तर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए।
इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, धीरे से गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, दूसरे के लिए थ्रो काफी वाइड, 2 रन पूरे। हमारे बीच नरेश मात्रे भी पहुंचते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। 3 ओवर की समाप्ति, 16-18 रन, 3 ओवर में अब 52 रन चाहिए। हरेश, अगर नतीजा बी इंडियन की तरफ निकला, मैंने बाली कप में कहा था कि फाइनल से पहले आप फाइनल देखिए, अगर नतीजा जॉली जीत गई, नो डाउट एट ऑल, अच्छा खेल के जीत सकती है, काफी ऑप्शंस हैं। कभी बी इंडियन जीत गई तो फिर मुझे फिर कहना पड़ेगा कि आप देखने जा रहे हैं सेमीफाइनल में फाइनल। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इस वक्त कल की चिंता के बगैर हम आज में जिए, आज क्या होगा, क्योंकि कल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, गुजरे हुए कल पे नजर ना रखते हुए आने वाले कल की बात भी करना चाहिए। जो शब्द है ओ को कहते हैं अपॉर्चुनिटी। ये ओ जो है ये यस्टरडे में नहीं होता, टुडे में एक बार होता है और टुमारो में वो जो है 3 बार होता है। लेकिन बोलना आसान है, यू हैव टू लिव इन टुडे एंड परफॉर्म टुडे। मोती के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इस वक्त नया ओवर लेकर आ रहे हैं हुजैर, 18 पे 2। अब की बार मोती ने हुक किया है, वहां पर उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल, आउटफील्ड तेज है, वहां पर देखना होगा 2 खिलाड़ियों के बीच में टक्कर होती हुई लगभग, और अब जाकर 2 रन पूरे किए मोती ने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर। सैफ अंसारी हमारे बीच में, आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। कम से कम 2 या 3 बड़े शॉट्स चाहिए जॉली को मैच में वापस आने के लिए, एटलीस्ट 3 बिग शॉट्स। इस बार लंबा हिट लगाने का प्रयास था मोती का, हुजैर ने जानबूझकर हाफ ट्रैकर बॉल को रखा था। मोती अपने फॉर्म के साथ जूझते हुए इस वक्त फुटवर्क साथ नहीं दे रहा है। 6 गेंदे अभी तक बिना कोई रन की खेले हैं मोती, ऑलमोस्ट 1 ओवर। इस बार मोटा सिरा लेकर बॉल चली गई थी, वहां पर शॉर्ट थर्डमैन जो कि दायरे के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर 21 फॉर 2। बड़े शॉट्स खेलने की आजादी मिल नहीं रही है और मैदान में एक से काम नहीं चलेगा। अब इस बार खेल दिया है गेंद के नीचे जमा, और जमा ने बल्लेबाज को कर दिया जमा, तो आउट होकर वापस जा रहे हैं इस वक्त बैट्समैन प्रेम। तो एक बड़ा विकेट मिलता हुआ। एक बार फिर से सिद्दीक, वही बात है कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर 6 लगाना ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये देखिए ऊंचा ज्यादा गया था, लेकिन जो लंबाई चाहिए थी वो नहीं प्राप्त कर पाए। अच्छा कैच, इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं जो फ्लड लाइट की रोशनी के अंदर से आ रहे हो। बहुत अच्छा कैच जमा द्वारा, और अब नए बल्लेबाज है यश। यश अपनी टीम को यश दिलाएंगे, ये सोच के साथ उनको बल्लेबाजी क्रम में बढ़ती दी गई है। बिल्कुल हरीश, अब तक 5 गोल्डन बाउंड्री लग चुकी है और पहली इसी ग्राउंड पे यश ने लगाई थी महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने लेट देवीदास पाटिल ट्रॉफी में। दरअसल में बी इंडियन की बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव आज हो गई है, क्योंकि पहले हसीब और उसके बाद मतीन ने जो कैच लिया उसकी बदौलत अब पूरी टीम चार्ज नजर आ रही है। गेंदबाज अपना काम सही कर रहे हैं और धीरे धीरे गेंदें खत्म होती जा रही है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के लिए। नया बैट्समैन यश लेकिन स्ट्राइक पर है। मोती एक बार फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं कर पाए, एक और डॉट बॉल। 7वीं गेंद
जिस पर वो रन नहीं बना पाए, लेकिन अभी भी अगर वो एक 6 लगा देते हैं तो वो सारे धुल जाएंगे। इस बार उठा दिया आसमान में और हसीब ने कैच ले लिया। वहां पर हसीब द्वारा लिया गया हसीन कैच और आउट होकर वापस मोती। बड़ा विकेट मिलता हुआ हुजैर को और इम्तियाज पापा स्वयं वहां जाकर हौसला अफजाई करते हुए, सीनियर प्लेयर इम्तियाज पापा। बी इंडियन क्वार्टर फाइनल उनका अभी तक सही जा रहा है और सेमीफाइनल का तख्ता कल के लिए तैयार होता हुआ। 2 खिलाड़ी कैच करने जा रहे थे, मतीन और हसीब, लेकिन आखिर में मतीन ने काफी परिपक्वता दिखाई, हसीब के ऊपर रिलाई किया। हसीब ने हाथों को फैलाया और आते हुए गेंद का स्वागत किया। गेंद उनके हाथों में इस तरह बैठ गई जैसे शाम को चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। और हसीब का ये दूसरा कैच। पूरे मैच को अगर हम एनालाइज करें तो फील्डिंग का जो स्तर रहा है वो बहुत ऊंचा रहा है। कैचेस विन मैचेस का नमूना हमने देखा है। अगला मुकाबला जहां पर टॉस जीता है पायनियर ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आखिरी क्वार्टर फाइनल, कल पहला क्वार्टर फाइनल जिस तरह हमें सूचना मिली है, पहला सेमीफाइनल 2 बजे रहेगा। ठीक जो बालाजी बी क्या सेमीफाइनल में फाइनल देखने जा रहे हैं। इस मैच की विजेता टीम टकराएंगी विकी स्पोर्ट कुक्से से और उसके बाद 40 प्लस का पहला फाइनल मुकाबला आप 4 बजे देखेंगे। 5 बजे आप रेगुलर ग्रामीण का फाइनल देखेंगे और 7 बजे आप मेगा फिनाले देखेंगे। तो यहाँ पर अब 12 गेंदें बची हैं और 49 रन चाहिए। 12 बॉल्स एंड 49 रन्स। हर बॉल पर चौका लगाना होगा। सऊद खतीब हमारे बीच में आते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। सईद अंसारी हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर तारिक रईस इस वक्त हमारे साथ हैं और जीतू मानेरकर के बहुत करीबी दोस्त हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। 12 गेंदों में 49 रन, यानी हर बॉल पर 4 बनाने पड़ेंगे। और ये टूर्नामेंट का नियम ऐसा है कि देयर इज नो सुपर ओवर, आपको कंपलसरी चेस करना ही है, अदरवाइज यू मिस आउट। 12 गेंदों में 49 रन, मानो बल्लेबाजी नहीं हाइलाइट्स खेलना होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर बॉलिंग में परिवर्तन, सहबान फकी के हाथों में गेंद दी है। यहाँ पर 2-2 ओवर अगर आप देखें तो अख्तर और हुजैर दोनों ने पूरे किए। उनका बॉलिंग एनालिसिस आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त सहबान नेवर की पहली गेंद जैसे टपा खाया, हरकत ली, वहां पर बॉल जा रही है वाइडिश मिड विकेट पर। अरविंद के बल्ले से आता हुआ ये शॉट। अब 11 गेंदों में 48 रन, 11 चेंडू 48 धावा, 11 बॉल्स 48 रन। हुजैर ने 2 ओवर किए, 6 रन लेकर 2 विकेट लिए और अख्तर 2 ओवर 15 रन 2 विकेट। इस बार तेज गेंद थी सहबान की, कंधों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स हैं सहबान के। बाई के रूप में आता हुआ रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा, यानी कि अब 47 रन चाहिए। और इस पूरे मैच का जो टर्निंग पॉइंट रहा था वो था आखिरी ओवर, जिसमें बाबा ने 20 रन लिए और वही फर्क रहा दोनों टीमों के बीच का। 20 रन्स ऑफ लास्ट ओवर। इस बार ड्राइव किया था, जितना उम्दा ड्राइव उतना ही लाजवाब क्षेत्र रक्षण, बोलर्स बैक ड्राइव पर। स्कोर अभी भी रुका है 4 विकेटों के नुकसान पर 23। इस बार एक और तेज तर्रार गेंद। मैं सिद्दीक एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सहबान का रनअप
के मुकाबले उसकी जो गेंदों का पेस है, अगर स्पीडोमीटर लगाया जाए, आई थिंक ही कैन बीट एनी फास्ट बॉलर. Look at the pace. I think he is bowling at his furious best. बिल्कुल बहुत पेसी और क्यूरियस गेंदबाजी कर रहे हैं. उसका एक रीजन है कि वो उनके आर्म का जो झटका है वो बहुत तेज है. He's a पैट्रिक पैटरसन जिस तरह किया करते थे. muscle bowler. एक और डॉट बॉल. इस पारी का ये 26वां डॉट बॉल था, यानी कि 4 overs have been dot balls out of almost 5 overs. नहीं, पूरी मैच का ये 26वां डॉट बॉल था. अगर हम 12 ओवर की बात करें, बी इंडियन की बारी प्लस जॉली की बारी. और अंपायर्स मुझे, थैंक यू कमलाकर जी, सिद्दीक अंपायर मुझे बता रहे हैं कि पूरा ओवर 2 मिनट में खत्म किया गया. ओहो, टाइम मैनेजमेंट की क्या बचत है. मतलब नहीं, जॉली और बी इंडियन दोनों टीमें ऐसी है जो समय की बहुत पंक्चुअल है. इट्स अ वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट. 1 ओवर में 47 रन, अब ये असंभव है. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर दे ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन जो फर्क रहा बाबा की बल्लेबाजी, लास्ट ओवर की जो बल्लेबाजी और स्टार्ट में दानिश का दिया गया एक बुनियादी मजबूती बल्लेबाजी का प्रदर्शन. वाइड बॉल, मतीन ने शुरुआत की. लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि मतीन मैन ऑफ द सीरीज रहे थे नाना कप में. तो यहाँ पर मतीन अब अगली गेंद. अब केवल औपचारिकताएं बची है. मतीन आखिरी ओवर कर रहे हैं. बी इंडियन, एक ही नारा बी इंडियन में चलेगा कि बाबा हमारा लकी है और जीत हमारी पक्की है. तो यहां पर बाबा द्वारा काफी अच्छी बैटिंग, और वो बैटिंग की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. बाबा ने कुल मिलाकर आज 20 रन बनाए, नॉट आउट. व्हाट अ बैटिंग. इस बार घुमा दिया आसमान में और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बॉल जाती हुई 6 रनों के लिए. देर से लगता हुआ ये सिक्सर, लेकिन हार के फर्क को खत्म किया था. बिल्कुल, बड़ी देर की मेहरबान आते आते इस तरह के शॉट्स जब इनिशियल ओवर में नहीं आए, वहीं से दबाव बढ़ गया. थोड़ा सा हार का फर्क खत्म होता हुआ. तो पायनियर के जुल्फिकार आ चुके हैं. जुल्फिकार देखते हैं आज क्या करेंगे. और इस बार सिद्दीक भाई काफी अच्छा मतलब जुमले देते हैं. और स्वॉर्ड ऑफ पायनियर, तो अगले मैच में महेंद्र और पायनियर के बीच में आप मुकाबला देखेंगे. पायनियर पहले बॉलिंग करेगी और महेंद्र बैटिंग. इस बार उठा दिया आसमान में, जमा के हाथ में आता हुआ एक और. एक पल के लिए जमा ने ठानी थी कि कुछ अलग स्टाइल में कैच ले, लेकिन उन्हें पता है कि यह क्वार्टर फाइनल है, फाइनल नहीं है. नहीं, और जब देखा यहाँ से आसिफ की आवाज को तो अपने आप को दुरुस्त किया. कॉन्ग्रेचुलेशन बी इंडियन, अबीब अंसारी, पप्पू अंसारी, कॉर्पोरेटर बबलू अंसारी, and hard luck Jolly Sport Kamatgar, the captain Avi, and congratulations बी इंडियन कैप्टन मतीन. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस वक्त बी इंडियन के डिजास्टर मैन बाबा. बाबा आपको आज्ञान है. सईद अंसारी, मैन ऑफ द मैच बाबा. हार्ड लक अभी. लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छा क्रिकेट इस मैच में खराब जरूर खेला. जॉली का क्रिकेट हमेशा मशहूर है. जॉली का टूर्नामेंट देखना ना भूलिए, 6 से 13 तारीख, आखिर के 3 दिन, डे एंड नाइट. हार्ड लक अमोल पाटिल, हार्ड लक अभी, हार्ड लक अरविंद.
सऊद खतीब हमारे बीच में हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, बालाजी कप को दुनिया में कहीं भी देखना है तो सिर्फ टाइप कीजिए YouTube पे बालाजी कप 2016।